Okay, now it's on. Fine. Okay. So I was telling you, digital marketing has gotten really, really powerful. And in post-COVID times, in fact, digital marketing has become a skill. For example, this, learning computers used to be one skill, and people used to mock about कि computers हमको क्या सीखने हैं, जिसको सीखना है, that's all. But no, it is not like that. Eventually everybody had to learn the computer. Similarly, eventually everybody will have to learn digital marketing. So you get into your own business or wherever, you would need digital marketing. And when we say digital marketing, you would need to create leads. Right? I'll tell you the real life scenario. I run a digital marketing agency as well. So clients come to me and the only thing which they ask is they say, Vikas ji, हमारी sale नहीं हो रही, हमको sale up करनी है. This is the one liner you will get from all of the clients. And then you have to really, really understand and really, really diagnose like a doctor what exactly is, because sale now as a symptom, you understand, your management students, sale now as a symptom, but then what is that, what you can do. So you really have to do a lot of things. So coming to Facebook, this is a very good paid method. I'm sharing my screen with you. So you must have heard about search engine optimization. You must heard about, paid advertisements. So search engine optimization is, you want people to find you. And when you want people to find you, you go, they would be searching for you in Google. And if you're discoverable in Google, so all those activities which you make to get discovered on the internet, that is called SEO. The other thing is that, yes, you can, get yourself in front of your customer by paid ads. And you must be scrolling Facebook a lot of times, and you must have seen a lot of advertisements over there. And you must have clicked on any of these advertisements and actually bought a product. So this is the Facebook page. Please confirm you're all able to see my screen. Yes, sir. Yes, sir. Fine, wonderful. So wherever you have some issues, in case I lose my audio or video, please alert me. Otherwise, I might end up talking to myself. So I'm trying to admit these two people. Yes, sir. Sure, sir. Okay, great. So this is the Facebook page. You all understand the Facebook page. यहाँ तक आप गए होंगे, you must be spending a considerable time out there, right? And if we keep on clicking, you see, देखिए, this is an advertisement. So whenever there is written sponsored, this is an advertisement. इसमें नोटिस करने की बात यह बहुत जरूरी है. This is from Harvard Business School online. So you see, advertisement is via some sort of a business, or for that you will have to create a page. You cannot run advertisements, Facebook advertisements from your own profile, right? It has to be a business page. For that you have to create pages. If you see on this left, this is how you create pages. यहाँ पे जाके icon में आप pages बना सकते हैं, or that is how you will be running an ad. So that is the first prerequisite. So once you see this, this is the typical format of an advertisement. और ये भी आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि कौन से कलर्स यूज करने हैं, क्यों यूज करने हैं, क्या फॉन्ट यूज करना है. देयर हैज टू बी कॉल टू एक्शन. कोई आपका एडवर्टाइजमेंट देखे तो उस देखने के बाद में क्या करें, right? Because if you do not have call to action, your conversion will go very, very low, and your customer acquisition cost will get very, very high, and the client is going to yell at you, itne paise kharch ho rahe hain, I don't have genuine inquiries, and I don't have X number of inquiries. So that is required. So the moment you click on learn more, this is how you reach. So they have, kind of taken you to their homepage, right? And then you can do your business over here. You can understand and do whatever. So this is one way of putting up an advertisement. Second, what you do is, when you are right here, you could probably take them to some inquiry form, or you can take them to some shopping something. So there will be various objectives to creating an advertisement. आप awareness फैलाना चाहते हैं, आप sales करना चाहते हैं, आप लोगों को shop में नहीं आना चाहते हैं, आप online traffic लाना चाहते हैं, आप footfalls लाना चाहते हैं. So there could be n number of objectives. So you should be very clear of what exactly your objective is. So this is a typical format. You can't overrule that format. You can go out of the format, because this is the format which Facebook provides to all of you, right? Okay. So similarly, this was one part of the ad. इसी तरह से आपको बहुत सारे ads दिखते जाएंगे. The beauty here is, Facebook बनाया गया था कि आप अपने दोस्तों के साथ में, किसी के साथ में जाके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उनके साथ हालचाल पूछेंगे और एक फ्रेंडशिप करेंगे. You do not have any intention to come and shop over here. या किसी की इंटेंशन होती है, जब आपको शॉपिंग करनी होती है, आप कहाँ जाते हैं? आप फेसबुक में शॉपिंग करने आते हैं? Please confirm, what do you want to do when you come to Facebook? What is your intent? Yes, class. हमारी क्या इंटेंट? हाँ, friends and all. Okay, I'm not able to hear you very clearly. I hope I am audible to you clearly. अब देखिए Power MBA का. So what happens is, while we are scrolling, something catches our eye. And we end up clicking on more. The moment we say learn more, अब ये भी learn more करेंगे, देखते हैं अपनी वेबसाइट पे ले आते हैं या क्या करते हैं. So this is how
and suddenly, the moment they take you to the website, every website will be different, and this is called a landing page. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? This is what all makes a paraphernalia for a successful advertisement. You cannot have a single ad, and you can't really skip that landing page, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तब जाके इंक्वायरीज आती हैं. तो फेसबुक आपको आपके पेज तक तो ले आएगा. पेज में लाने के बाद में देन देयर मस्ट बी सम कन्वर्जन मैकेनिज्म हैपनिंग ओवर देयर. जैसे आई वांट माय फ्री क्लास, इफ आई से फ्री क्लास, प्रोबेबली इज गोइंग टू आस्क फॉर माय ईमेल. When it's going to ask for my email, if I put my email over there, ये देखिए first name and all that, it is taking my data. क्यों डेटा ले रहा है? क्योंकि डेटा होगा तो रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, and they can talk to me later on, and they can kind of help me understand the value of the course and whatever. So this is how it is made, and it would have some sort of urgency भी create करेंगे यहाँ पर, some sort of offers भी होंगे यहाँ पे कोई deadlines भी होगी. वो simple as that. So this is landing page. I just want to tell you कि ये landing page भी जरूरी है. Coming back to our Facebook thing. Yes. ठीक है, इस तरह की आपको एडवर्टीजमेंट्स आते रहेंगे, एंड एवरी एडवर्टीजमेंट विल हैव सम अदर कॉल टू एक्शन. जैसे हमने 2 कंटिन्यूसली देखी, उसमें लर्न मोर था, मे बी इन सम अदर इट इज अप्लाई नाउ. सो यहाँ पे जो है इट इज डिफरेंट. अप्लाई नाउ, इट इज द कॉल टू एक्शन इज डिफरेंट. And this is a typical format. There is this name of the page, there is the logo, there are 3-4 lines of content. आपके पास ज्यादा content है तो see more कर सकते हैं. Ideally यहीं तक content अगर सीमित रहे तो बहुत अच्छा है, because that is how people are able to look at. People don't have attention spans, so don't put lot of content over here. ये करने के बाद में apply now. If you click on apply now or photograph or to apply now, this is probably is going to happen. तो हमने यहाँ पर क्लिक करते हैं, you see it takes us immediately to the Voxen homepage and inquire now. So this is the right kind of a page where you are able to capture customer data before doing anything else. आपको customer data अगर मिल जाता है, then your search engine marketing can start, your relationship marketing can start, and so many things can happen. So this is how it should end up. Now coming to how do you create an advertisement. इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आपको क्रिएट करने के लिए यू विल हैव टू गो. यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सबसे पहले तो पेज होना चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू क्रिएट पेजेस, आई होप यू नो इट ऑलरेडी. नहीं तो फिर आप कहीं कभी दोबारा दूसरी क्लास में करेंगे. बट दैट पेज हैज टू बी वेरी वेरी गुड. The page has to have a proper cover photograph. It has to have few entries already, few posts already before you start taking out advertisements. Do not, and I repeat, do not start making advertisements immediately the day you create pages. No, first enrichen your page. क्योंकि उससे क्या होता है, देखिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी स्कोर इन फेसबुक. अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ना पेज की, ना एड की, एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, सो पीपल एक्चुअली दे डू गेट सम काइंड ऑफ फीडबैक्स ओवर देयर, एंड इफ दे पुश ऑन दैट बटन जिसमें लिखा हो कि लो क्वालिटी, धीरे धीरे ये हो सकता है कि आपके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो ये फेसबुक चलाना बंद कर दे और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है. So quality is very important, because as a social media champion, Facebook would want good content to be presented to the audience. Okay, so have a good page. Then if you go here, you can see more. See more में अगर आप जाएंगे, so you see ad center, you see ad manager. So if I click on say ad manager, it's going to take me somewhere. Yeah. So the moment I click on ad manager, this is where this is the okay. Give me a moment, please. Okay, so now what is happening is you can see this page, और ये जो पेज है आपका, ये जो पेज है, this is what is the what do I say, the home page, what you will see. Let me switch accounts for a moment, please. Let me switch this account. Okay. Sir, we have to go to see more. हाँ जी, We have to go to see more and then नहीं सी मोर, हाँ उसमें वहां पे एड मैनेजर. अभी साथ साथ मत करने की कोशिश कीजिए, आपको मुश्किल होगी. ओके, देखिए यहाँ पे गए सी मोर में, आपको दिख जाएंगे यहाँ पेजेस में. ये सी मोर पे गए आप यहाँ पे, एंड यू सी एड सेंटर एंड एड मैनेजर, राइट. ये एड मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक ऑन एड मैनेजर, दैट इज द पेज ऑफ एन एडवर्टाइजर. जैसे जितनी एंथुजियाज्म से जो सर्फ करने वाले लोग पेज खोलते हैं और उनको अपनी टाइमलाइन नजर आती है, वो बड़े हैप्पी होते हैं.
Similarly, you know what you have to do is this is the page where you will be playing, right? This is your playground. What you have to do is do not get worried about all this. ये पूरा डैशबोर्ड निकल के, this is called a dashboard, Facebook page dashboard. आपको यहाँ कैंपेन्स हैं, यहाँ पे एड सेट्स हैं और एड्स हैं. देखिए मार्केटिंग में आपने सुना होगा मार्केटिंग एड कैंपेन्स. सो कैंपेन इज लाइक वन अम्ब्रेला टर्म. एक कैंपेन के अंडर अगर आप हॉर्लिक्स का कैंपेन या बूस्ट का कैंपेन रन करते हैं, उस कैंपेन के अंदर देयर कुड बी मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स, right? There could be multiple advertisements and multiple ad sets. For example, you can have one campaign and then one campaign would have different ad sets, one ad set for geographical location, one ad set for something else. So you can have different ad sets, and उस ad sets के अंदर भी you can have multiple advertisements. ठीक है? So this is how the hierarchy is. तो हमको कहाँ जाना है? सबसे पहले हम जाएंगे campaigns में जाके create button दबाएंगे. So the moment you create, you know, this is how it is. The number one page, the number one question it is going to ask you, what is your objective? आप करना क्या चाहते हैं यहाँ पे? Because until unless you give this information to Facebook, Facebook will not be able to serve out the best quality ads and it will not be able to give you the right format. आपको अवेयरनेस फैलानी है, आपको रीच फैलानी है. कभी कभी हमें दूर तक रीच पहुंचानी होती है. लोग हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हमको देखें. Sometimes you want traffic, you want engagement. Engagement means even you know if people are coming over to your advertisements और वहां पे जाके वो या तो comment पे कुछ post कर रहे हैं, comment या like कर रहे हैं या उसको share कर रहे हैं. I mean some or the other action they must take and that is counted as an engagement, right? Then you want probably in app installations. आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐप बनाया आपने, you just want installations. That's it. So similarly, you know, आपका कॉल टू एक्शन वहां पे क्या होगा? अभी लर्न मोर मैंने आपको दिखाया, अप्लाई नाउ दिखाया. आपका अगर ऐड होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? कॉल टू एक्शन. यस क्लास, गिव इट अ ट्राई. इंस्टॉल ऐप. हाँ, इंस्टॉल ऐप. यस, इंस्टॉल नाउ. इंस्टॉल नाउ, सिंपल एज दैट. ठीक है, आपको इंस्टॉल नाउ मिलेगा, वो कर सकते हैं आप. Then if you have a video and you want more views on your video, so you can, you know, choose this. If you want leads, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू नो स्मॉल बिजनेस को अब ये देखना है आपने ध्यान से कि आप क्या करना चाहते हैं. कन्वर्जन्स और ये कैटलॉग और स्टोर ट्रैफिक, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू, ये ई कॉमर्स के रिलेटेड हैं ज्यादातर. लेकिन अगर यहाँ पर जो है अवेयरनेस और कंसिडरेशन देखिए, इफ यू आर ए स्मॉल बिजनेस यू कांट रियली अफोर्ड टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, राइट? वो बड़ी बिजनेसेस करते हैं. अब रीच करना ये सब जो है आपको या तो ट्रैफिक एंगेजमेंट, बट नथिंग वर्क्स बेस्ट देन यू नो लीड जनरेशन और मैसेजेस. देखिए आपको आपका पैसा खर्च करके क्लाइंट को इमीडिएटली प्रूव करना है कि यस समथिंग इज हैपनिंग. You can't, how are you going to, you know, kind of measure awareness and tell the client कि नहीं अभी तो awareness हो रही है, 2 महीने बाद client is going to fire you. Client wants immediate results. Client के पास टेंशन है कि उसकी सेल नहीं आ रही है. So this is extremely important that you make the right choice. आप उतने ही पैसे में ब्रांड अवेयरनेस करेंगे तो उसका रिजल्ट 6 महीने तक नहीं आएगा, और अगर आप लीड जनरेशन करेंगे तो हो सकता है 2 घंटे में आपको पहली लीड आ जाए. दिस इज हाउ सो फास्ट द फेसबुक वर्क्स. सो इन केस यू हैव अ फैमिली बिजनेस, दिस इज द रूट यू शुड टेक. मे बी लीड जनरेशन, मे बी मैसेजेस. मैसेजेस मींस दैट यू नो फेसबुक इज गोइंग टू एनकरेज पीपल दैट यस यू मैसेज. आप कोई भी करेंगे मैसेज नाउ, टॉक टू अस, इस टाइप की चीजें आएंगी और आपको बस मैसेज वो लोग कर पाएंगे. लीड जनरेशन में यू विल गेट अ लीड. नाउ हाउ डज अ ट्रैफिक डिफरेंशिएट फ्रॉम अ लीड? आई होप यू नो. Traffic is simply people coming and visiting your website. It is just like in offline store also. आपके पास में दुकान के अंदर कोई आया, उसने सामान देखा, इधर उधर देखा और वापस चला गया. So that was just a traffic. And if you do not have a mechanism to convert that traffic into lead, you are wasting all your money. So the moment people enter, आपने देखा हो कितनी शॉप्स में immediately आपके पास पूछते हैं, may I help you sir? क्या कर सकते हैं, या कुछ आपके लिए ले आएंगे, आप अपना इसमें कार्ड डाल दीजिए, अपना सा नाम और फोन नंबर दे दीजिए. देन दे स्टार्ट एंटरटेनिंग यू. So number one thing they want is your name and number. Why? Because then you become a lead. Once you are a lead, company can follow you, company can send you good material, and somehow you know company can take a chance in converting you over a period of time. So lead generation में हमको lead मिल जाती है जब कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हमको नेम, ईमेल, फोन नंबर उसका मिलता है, then that is called a lead. So I'll rather go with this today. बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा. Lead generation. So we'll make a lead generation ad today. So this is lead generation. You can use a form or calls or chats to gather info for people who are interested in your business. So now I'll click continue. ठीक है, आप अपने बिजनेस को नेम भी कर सकते हैं यहाँ पे. फिलहाल I'm not spending time over there. So campaign name, yes. So maybe I can put this campaign name as, you know, new lead generation campaign. Yes. Sir, one question. Yes, please. Anuj, this side, one question. Like हम conference कर रहे हैं, international conference, हमने उसका पेज बना दिया. उसको हम उसके लिए हम क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब रीच बढ़ानी है हमें, मतलब मैक्सिमम. अगर आपको क्लियरली पता है कि आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑडियंस कहाँ पर है, राइट, तो उसके लिए आप लीड जनरेशन ऐड चलाइए और उसी ज्योग्राफी में चलाइए. ओके, उसी ज्योग्राफी में चलाना है हमारे को. अभी इट विल बी मोर क्लियर.
so I'll be able Okay, to thank answer you, your sir. question Thank better. Thank तो इसका हम कैंपेन का नाम रखते हैं न्यू लीड जनरेशन कैंपेन फॉर से आपके कॉलेज का नाम है अपीजे, ठीक है, अपीजे कॉन्फ्रेंस हो मे बी व्हाटएवर, राइट। अब ये हमारा लीड जनरेशन कैंप। नाउ स्पेशल एड कैटेगरीज होते हैं कि जैसे कोई टैक्स एग्जेम्पशन वाला या कोई चैरिटी वाला, हॉस्पिटल, इसको छोड़ दीजिए। बाइंग टाइप इज आइदर ऑक्शन और sometimes when you become a good what do I say an experienced and a more frequent user of advertisement, आपको यहाँ पे और ऑप्शन भी फेसबुक देता है। दिस इज जस्ट लाइक आईसीआईसी बैंक टेलिंग यू कि आपका 10,000 रुपए का हम एक लिमिट दे रहे हैं आपको, कैश विड्रॉल लिमिट, और जब उनको लगता है कि 10,000 आप एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे होती है, आप 10,000 तक पहुंच रहे हैं और आपका पेमेंट शेड्यूल ठीक रहा है सब कुछ, तो 10 का 20 कर देते हैं, 20 का 50 करते हैं। सिमिलरली विद फेसबुक, earlier it was not so, now Facebook has gotten really stringent, Google has also gotten really stringent। तो वो ये चाहते हैं कि only genuine people come and play out। तो वो ये चाहते हैं कि जिस दिन आप एक एक्सीड कर देंगे एक लिमिट, सो आपको और ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज प्योरली ऑक्शन। नाउ व्हाट इज ऑक्शन? आई एम आल्सो रनिंग एड, अनुज सर इज आल्सो रनिंग एड, हिमांशी पांडे इज रनिंग एड, गर्भित जेली इज रनिंग एड्स। So what is going to happen is there would be a price which Facebook is going to put, and for that price you will have to bear that price। आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में, और आप जो हैं आपको इसी को चूज करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो व्हाट डिड आई डू, एक मिनट, कुछ गलत प्रेस हो गया। या सो वी वर हियर एट द ऑक्शन। इसके बाद में हमने सॉरी हाँ, लीड जनरेशन हमने चूज किया हुआ यहाँ पे। बाइंग टाइप इज ऑप्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इस आई को क्लिक करके, आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, जस्ट ओवर अराउंड, आपको पता चल जाएगा। ब्रांड अवेयरनेस में शोज श्योर एड्स टू पीपल आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अब इसके एक एक के पीछे पूरी साइंस है, मैं इन पे अभी नहीं जाऊंगा, सो आई विल ओनली कंसंट्रेट ऑन लीड जनरेशन टुडे। लीड जनरेशन इज यूजिंग फॉर्म्स, कॉल्स एंड चैट्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन। हमने ये इसको चूज कर लिया। हमने चूज करने के बाद में नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आपको क्लाइंट ये कहे कि हाउ मच लीड्स आई वुड गेट, हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ माय लीड्स एंड एवरीथिंग, यू रियली कांट गिव अ फिगर। यू कैन ओनली गिव अ फिगर, जो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यू कैन ओनली गिव अ फिगर कि इसकी रीच कहां तक हो सकती है, हाउ मेनी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड लाख्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू सी इट एट व्हाट बजट, वो आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी लीड्स आपको कंफर्म्ड आएंगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पायलट करना पड़ता है। ए बी टेस्टिंग इज नथिंग बट वी रन वेरिएशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे, ट्विटर में जाते होंगे, समटाइम्स द सेम न्यूज इज देयर विद डिफरेंट हेडलाइंस। Why? Because one headline might evoke another reaction and another headline might attract people from another angle altogether। तो आप ये टेस्टिंग करके देखते हैं कि कौन सी हेडलाइन मेरी इज मोस्ट लाइकली टू गेट मी द पुल्स। जब आपने ये पायलट में 5,000 पे खर्च लिया है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ओवर ऑन द पायलट, मे बी आपका अगर 50,000 का बजट है तो 5,000 इट्स गुड कि पायलट में खर्च लिया जाए। अगर 5,000 का बजट है तो 200 रुपए लगा लीजिए। कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। ए बी टेस्टिंग इज नथिंग बट वेराइटी ऑफ एड्स, वेरिएशंस ऑफ दैट एड, एंड वंस यू विल गेट दैट एनालिटिक्स इसमें मिल जाएगी आपको कि किस एड को कितने लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया व्हिच एड इज वर्किंग बेटर। वंस यू नो व्हिच एड इज वर्किंग बेटर, देन यू पुट योर मनी ऑनटू दैट एड एंड यू कैन स्टॉप अदर एड्स। Otherwise क्या होगा, maybe your ad quality score is low, maybe your advertisement is not doing well, it doesn't have that kind of hooks। So what is going to happen is you put money and you will not get that kind of ROI with a bad ad or an ad which is like which doesn't have those hooks, which is not able to attract people. So no point putting money over there. So you put your money onto the best advertisement which is working। And I tell you, this is not a gut feeling। I've been doing it for 10 years, I still do not believe in my gut feeling कि ये ad अच्छा होगा। I do A/B testing. I run a number of advertisements, and that is how you find out how are you able to which advertisement you should choose। Okay, then there is something called campaign budget optimization। इसमें क्या होता है, इसको ऑन कर देना ठीक होता है, it's not a problem। इसमें क्या होता है कि then Facebook takes over और वो उसको जहां स्प्रेड आउट करना होता है आपके एडवर्टीजमेंट को, तो वो अपने हिसाब से, Facebook is nothing but a machine, you see, तो उस मशीन लर्न करती रहती है, उसको समझ आता रहता है, इट ऑटोमेटिकली कस्टमाइजेस। सो आई नॉर्मली स्विच इट ऑन। देन कम्स योर बजट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स दिस काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी सोचा होगा कि सब लोग क्यों डिजिटल मार्केटिंग तरफ जा रहे हैं, क्यों इतना डिजिटल मार्केटिंग बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये बढ़ेगा, ये अगले 10-15 साल तक रुकने वाला नहीं है। क्यों?
Because of this very simple reason that it is so, cost effective to run. अगर आपको ऐड निकालनी है और अखबार में आप निकालनी है, आप छोटे बिजनेसमैन है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप अखबार में ऐड निकालेंगे। आधे पन्ने का ऐड अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में निकालते हैं, नेशनल में लाखों में चला जाती है उसकी प्राइसेस। और फिर प्रॉब्लम क्या है उनके ऐड निकालने वालों के साथ में, ठीक है एक बार इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट वन ऐड, इट हैज टू बी मल्टीपल टच पॉइंट्स विद योर कस्टमर। And in marketing, it is said until unless you have 8 to 14 touch points with your customer doesn't even register your logo into their minds. Well, they don't remember you. So 8, 9, 10, 14, 15 touch points. So it's not about taking one ad worth 50,000 rupees. You should have money in your pocket to spend it for 14 ads. That is 7 lakh rupees. And this is where people make a mistake. This is just like, telling somebody out in the street, will you marry me, and expecting कि वो तो कूद पड़ेगी और कहेगी yes, yes, मेरे सपनों के राजकुमार तुम कहाँ थे, मैं तो वेट ही कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं? It doesn't happen that way, isn't it? Even if the other person interested, still you have to, kind of build that relationship, nurture that relationship. तभी हमारे यहाँ होता है ना रोका, फिर उसके बाद में शादी के बीच में कुछ गैप होता है. That is how it is, So you have to have multiple touch points. For that multiple touch points, you will have to show your advertisements to multiple people. कितनी बारी फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट अगर आपके सामने से होकर निकल गया, आपने कोई जरूर थोड़ी उस पर क्लिक करेंगे, या जरूरी है कि कोई ऐड क्लिक करेंगे, हर बार क्लिक करते हैं? यू डोंट डू दैट. तो वो जब आपके सामने से निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एन इंप्रेशन. जब आपके सामने से निकल गया एडवर्टाइजमेंट, दैट इज कॉल्ड एन इंप्रेशन. और जब आपने उस पर क्लिक कर दिया, दैट इज लाइक क्लिकिंग. लेकिन सामने से जो निकल गया, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन. फेसबुक चार्जेस यू ऑन इंप्रेशन. फेसबुक कहता है कि हमने आपका एडवर्टाइजमेंट आपके क्लाइंट के सामने या पोटेंशियल ऑडियंस के सामने दे दिया. अगर आपके एडवर्टाइजमेंट में ही दम नहीं था, उसका कलर अच्छा नहीं था, उसका लोगो अच्छा नहीं था, फोटो अच्छा नहीं थी, कंटेंट अच्छा नहीं था, हुक अच्छा नहीं था, कॉल टू एक्शन अच्छा नहीं था, कंटेंट अच्छा नहीं था, लिंक्स ठीक नहीं थे, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी. हम आपके जो है टारगेट ऑडियंस के सामने अपना ऐड लेके चले गए. सो दे चार्ज यू ऑन इंप्रेशंस, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि योर एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी गुड. जिसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं होगी, जिसको समझ नहीं होगी, ऐड तो निकाल लेगा. देखिए ऐड बनाने में कुछ नहीं है, आप देख लेंगे, लेकिन ये दिस इज जस्ट द टाइप ऑफ द आइसबर्ग. यू गॉट टू हैव एवरीथिंग, योर होमवर्क शुड बी सो सॉलिड. This is how Facebook charges. तो per 1000 impressions, per 100 impressions वो चार्ज करते हैं आपसे. Now you can set up your daily budget. आपने डेली बजट रखा है, लाइफ टाइम बजट. लाइफ टाइम बजट इज लाइक कैंपेन का लाइफ टाइम बजट. आपको 50,000 रुपए हैं, यू वांट टू स्पेंड इट ऑन लाइफ टाइम की ये है, और अपने हिसाब से इसकी स्पेंडिंग होती रहे. ये 50,000 हमने खर्चने, आज 10 दिन में हो या 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, ये हमारे पास लाइफ टाइम बजट है. लेकिन स्मॉल बिजनेस पीपल, एंड दिस इज हाउ यू शुड बिहेव, एंड दिस इज हाउ आई डू इट. यू शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू योर एडवर्टाइजमेंट. सो आई वुड रादर पुट अ डेली बजट. ठीक है, आपका ठीक है 50,000 रुपए जरूर है, लेकिन डेली बजट रखने से क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल फीचर. हम 100 रुपए का बजट रख सकता हूँ मैं. तो 100 रुपए का बजट जो है, उससे भी मैं अपनी एड चला सकता हूँ. कैन यू इमेजिन द ब्यूटी? अ बिग कॉन्ग्लोमरेट इज रनिंग इट्स एड ऑन फेसबुक. यू कैन आल्सो बी ऑन फेसबुक. So when I say 100 rupees, so it says you will spend up to 125 rupees on some days and less on other days. You will spend an average of 100 rupees per day. Now this is average. Facebook क्या करता है, वो मशीन है, वो समझता है कि हो सकता है सैटरडे को आपके ऐड में रिस्पांस ज्यादा आ रहा है, या वेडनेसडे को ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, फलाना टाइम पे ज्यादा रिस्पांस आ रहा है. तो उस रिस्पांस में जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. ओके, सो व्हाट डज फेसबुक डू? उनको लगता है कि हाँ इस दिन ज्यादा रिस्पांस होता है, इस दिन कम हो सकता है, तो ये अपने आप ना उसको 10% की क्रिएटिव लिबर्टी लेता है, और एक दिन बजट आपका बढ़ाता है, एक दिन कम कर देता है. दैट इज सो दिस इज अबाउट डेली बजट. तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं. आप 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1 लाख रुपए, वट एवर. व्हेन आई रन कैंपेन्स, तो मैं 200 रुपए से लेकर के, मेरे पास में क्लाइंट्स ऐसे ही जो 200 रुपए पर डे स्पेंड करना चाहते हैं, और जो 1 लाख रुपए पर डे स्पेंड करते हैं. तो दिस इज द वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स आई एम हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो 100 रुपए वाले होते हैं हु वांट टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस ऑन डिजिटल मार्केटिंग की हो सकता है, और हमको रिजल्ट आ सकते हैं. धीरे धीरे जैसे उनको रिजल्ट आना शुरू होता है, देन दे आर वेरी हैप्पी विद द बजट एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रैटेजी. तो इसके अंदर और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपको? या तो लोएस्ट कॉस्ट है, या कॉस्ट कैप है, या बिड कैप है. तो कंट्रोल योर कॉस्ट व्हाइल गेटिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स और बजट. ये 3 तरह के ऑप्शंस हैं. अब ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है. सो जनरली यू कैन चूज लोएस्ट कॉस्ट कि आपका. अब इसमें लोएस्ट कॉस्ट में थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि अगर आप एक कंटेंडर हैं और आपका टेंडर की तरह हो गया, ये आपकी कॉस्ट लोअर नहीं है, तो आपका ऐड नहीं दिखेगा. सो मे बी यू कैन ऑल्सो चूज हायर कॉस्ट आप कंट्रोल करना चाहें, या फिर बिड कैप करना चाहें. कंट्रोल योर बिड इन ईच ऑक्शन.
it is not recommended, until unless you get a good hold of Facebook. This is just like using a camera DSLR. एक होता है ना उसमें कि शूटिंग मोड नॉर्मल, कौन सा शूटिंग मोड होता है, ऑटोमेटिक, आप उस पर सेट करते हैं, यू कैन शूट. द मोमेंट यू गेट इनटू मैनुअल, एंड देन तब आपको समझ में आता है SLR होता क्या है. एपर्चर खुल जाएगा उसका लाइट हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, एंड देन यू गेट लॉस्ट इनटू ऑल दैट कॉम्बिनेशंस. तो जब तक नहीं आता आपको, तो ऑटो मोड पे रखिए और शूट कीजिए और खुश रहिए. तो लोएस्ट कॉस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट. ओके, ये करने के बाद में आपने जब ये चीजें कर ली, देखिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं उस मशीन को कि व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन. और साथ में यहाँ लिखा है कैंपेन में गेट 0 लीड्स. बेस्ड ऑन हाउ यू सेट अप योर कैंपेन, वी रिकमेंड ट्राइंग द फॉलोइंग टू अवॉइड एक्सपैंड द ऑडियंस ऑफ योर एड सेट. ठीक है, ये साथ साथ आपको थोड़ा गाइड करते रहते हैं, वो हम अभी करेंगे, बनाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. We have a campaign name, we have a campaign detail as auction type, we have chosen lead generation campaign, we have chosen not to do A/B testing at this point of time, we have optimized our budget to 100 rupees. हम अभी ठीक है, ट्रेनिंग है तो कोई बात नहीं, 1000 भी कर सकते हैं इसको. और लोएस्ट कॉस्ट हो गया. अब देखिए वो कह रहा है कहीं पे 12,500 कर देंगे हम आपका खर्च, कहीं पे 7,000 रुपए, 700 रुपए कर देंगे. ठीक है, और 7,000 से ज्यादा नहीं होगा, 7 दिन का आपका ये बजट है आपका. ठीक है, कैलेंडर वीक. ये जब हमने सब कुछ कर लिया, ऑल एडिट्स आर बीइंग सेव्ड, देन वी गो टू द नेक्स्ट. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट्स. नाउ हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल? So you see there is a different dashboard over here. There is something called audience definition. ये आपको एक मीटर भी दिख रहा है यहाँ पर, और ये instant forms, automated chat calls. आप कैसे चाहते हैं, connect कैसे करना चाहते हैं. Now it is very important. Please choose only what you are prepared for. Do not choose anything which you are not prepared for. मैं बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखता हूँ, रियल एस्टेट के, डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के, किसी एजेंसी को दे देते हैं, बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट आ जाता है अखबार में, यू गेट वेरी इंप्रेस्ड, और आप इंप्रेस हो जाते हैं, आप फोन करते हैं, कॉल करते हैं, कोई उठाता नहीं है. This clearly shows how disconnected the agency and the client is. क्यों आपने इतना बड़ा ऐड निकाला? इसलिए लगाया ना क्योंकि लोग खुश हों, देखें और फोन करें आपको, कॉल करें. जब कॉल करें, फोन उठाना ही नहीं है, तो what is the point? You are spending money to piss off people. Don't do that. तो जब तक जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आप उसे मत कीजिए. ऑटोमेटेड चैट, अगर आपके लिए ऑटोमेटेड चैट में, देखिए ऑटोमेटेड चैट हो सकती है, फेसबुक में इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसके लिए आपको फीड इन करने पड़ेंगे सारे FAQs. फॉर एग्जाम्पल एपीजे में किसी ने एडमिशन लेना है, तो उसके पास में 200 क्वेश्चन होंगे. क्यों लूं एडमिशन, कौन से कोर्सेज है, फैकल्टी कैसी होगी, प्लेसमेंट कैसी है, मेरी कितनी फीस है, फीस कैसे जमा कर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज करनी है कि नहीं करनी है, अगर मैं अटेंडेंस कितनी होगी, अटेंडेंस कम होगी तो क्या होगा, फीस नहीं दी तो क्या होगा. हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस. Somebody has to sit and draft FAQs of all possible questions and feed into that chat box, so that whenever somebody asks a similar question, chat box is able to pick that chat particular question and throw the answer in front of the customer. अगर वो नहीं है, आपके चैट बॉट को पता नहीं होगा, बात बात पे चैट करेगा, पूछ के बताता हूँ, कनेक्ट. No, you will lose a customer. So be prepared. Calls, if calls, that means you should have a 24/7 call center ready. People can call at any time. They can see your advertisement at 2 a.m. at the night and choose to call. फिर क्या करेंगे आप? तो अगर आपके पास में वो भी नहीं है, so the best thing is instant forms. And if you are a single person, if you are a person who wants to play it lean and thin, so you don't want to have a periphery of all this, people working for you and all that drama. If you don't want that, you can be a millionaire sitting at your home easily with these kind of a setups. बहुत सारे tools हैं. एक tool is equivalent to one management professional, better than that. ठीक है, you can't depend on people. People these days have very low ethics, but you can depend on machines. So choose instant form, simple as that. तो ये इसका rational है. And now what is it telling you? Your audience selection is fairly broad. अभी ये बता रहा है कि आपका जो ad है इतने करोड़ों तक जाएगा, और हमने 1200 रुपए खर्चे हैं सिर्फ. तो ये उसकी रीच है, पोटेंशियल रीच. ये एस्टिमेट देता रहता है मशीन, इसको भी मत देखिए. हाँ, उसको हमें ठीक करना होगा, ठीक हो जाएगा. सो नाउ चूज द फेसबुक पेज. देखिए पेज की बात आ गई, यू विल हैव टू चूज द पेजेस. सो आई विल हैव मल्टीपल पेजेस. यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आप अगर एजेंसी हैं, I'm showing it from a different angle. This I'm not showing you my agency page because of obvious confidentiality reasons. We are under strict contracts from people. They don't want. कितने सारे ऐसे लोग हैं जो VP मार्केटिंग हैं कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनी में, और एड हमसे चलवाते हैं, तो उनकी नौकरी चली जाएगी. So they don't tell their officers that I'm running their advertisements. So they take their salaries and they brief me, and so I'm a ghost advertiser for them. I don't get credit. I don't mind. And then till the point of getting money, I don't want that credit. That's fine. तो क्या होता है, उनका ad चलाने के लिए they would have to give access to their page to me. They will have to make admin. They will have to make me the admin. Once I'm the admin of a page, all these pages will show up here. All these pages will show up here.
ये जब पेजेस यहाँ शो होने लग जाएंगे, देन आई कैन चूज विच एवर पेज है. सो इफ आई वांट टू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर से एक्स अमाउंट एक्स कंपनी, आई कैन चूज देयर पेज. इफ आई वांट वाई कंपनी, आई कैन चूज देयर पेज एंड रन द एडवर्टाइजमेंट्स. सिमिलरली अभी यहाँ पे पीएलआर बिजनेस समझाने के लिए आपको लिखा, बिकॉज दिस इज माय ओन स्टफ. सो मैंने ये चूज किया. ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन में कई सारे पेजेस आ जाते हैं. आर यू विद मी ऑल ऑफ यू एट दिस पॉइंट टाइम? कुछ पूछना है? सब समझ में आ रहा है? इज माय पेस राइट? आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल फास्टर क्योंकि समय कम है. इज एवरीथिंग फाइन? आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? कुछ पूछना है, कुछ कमेंट है तो बता Yes, दीजिए मुझे. it's an interesting sir. सुपर सुपर, ओके ग्रेट. या दीज आर वेरी ग्रिपिंग थिंग्स. तो बड़ा मजा आता है करने का भी और सुनने का भी. ओके, सो नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव एक्सेप्टेड द फेसबुक. ये सिंपल फॉर्मेलिटी है. आप नहीं भी करेंगे एक्सेप्ट तो क्या कर लेंगे फिर? आप एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ऐड देना है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ये गुंडागर्दी है फेसबुक और गूगल की. ओके, एनीवेज, डायनेमिक क्रिएटिव ये होता है कि ऑटोमेटिकली आप एक बैंक में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भर देते हैं और फिर जैसे जैसे ऑडियंस होती है उस हिसाब से वो आपके बैंक में से नई नई फोटोग्राफ्स, नए जो है कॉल टू एक्शन और नए कंटेंट का ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बना के लोगों के सामने डालता रहता है. इस लेवल पे भी जो हो चुका है ये, दिस हैज इवॉल्व्ड टू सच लेवल. अभी फिलहाल इसको ऑफ रख रहे हैं हम लोग. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड बजट एंड शेड्यूल. सो इफ आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम 2:20 PM कोलकाता टाइम, you know, this is my start date. Please do not, I repeat, please do not forget to put an end date. नहीं तो होगा क्या, ये ऐड चल पड़ेगा और चलता चला जाएगा. अगर हमने 1200 रुपए आज सेट किए हैं तो डेली बेसिस पे 1200 रुपए निकलते जाएंगे. और अगर आपके बैंक से कनेक्टेड है तब तक अकाउंट खाली नहीं रहेगा, तब तक ये चलते रहेंगे. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव अ वेरी गुड एंड डेट, क्लियरली डिफाइंड एंड डेट. देखिए, एंड डेट छोटे छोटे होते हैं, उससे हमको मौका मिलता है अपने एड्स को रिव्यू करने का. अगेन इट्स ऑल अबाउट डिपेंडिंग ऑन बजट्स. कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि 1 करोड़ रुपए डाल दिया, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है. मैंने ऐसे भी बहुत देखे. ओके, सो टुडे इज 14th. तो 14th के बाद में मे बी आई वांट टू रन इट टिल मंडे एंड देन आई विल रिव्यू. तो ठीक है, आप टाइम भी सेट कर सकते हैं. अगर आप चाहें कि हाँ रात के 12 बजे तक ही चले, दीज एडवर्टीजमेंट्स आर वेरी गुड. अगर आप कोई जैसे कॉन्फ्रेंस का, मुझे अनुज सर बता रहे थे, तो अगर आप कॉन्फ्रेंस का ऐड चलाते हैं, आपको पता है कि भाई मेरी 15 तारीख को कॉन्फ्रेंस है, तो 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा शाम को 5 बजे तक एंट्रीज आने चाहिए आपका, तो आप 5 बजे बंद कर दीजिए इसको. आप 7 घंटे एक्स्ट्रा चला के क्यों पैसा खर्च करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं अलग बात है, बट दिस इज हाउ यू कैन, आई मीन व्हेन द इवेंट हैज पास्ड, तो देयर इज नो पॉइंट कि वो ऐड चलता रहे. तो आप अपना टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड. सो रीसेट योर डेट टू टुडे. अच्छा, ये सॉरी, ये क्या है? नहीं ठीक तो है. सितंबर, हाँ ओके, 14th का नहीं देने दे रहा था वो, इसलिए पास्ट होगी डेट क्योंकि 14-20 सभी हो गया था, इसलिए हमको टाइम बढ़ाना चाहिए था. अगर हम आज का करना चाहते हैं तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा ताकि उस टाइम पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे 15-20 मिनट आगे का टाइम. सो यू हैव नाउ सेट अप द बजट एंड शेड्यूल एज वेल. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑडियंस. देखिए, हाउ इज सोशल मीडिया डिफरेंट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया एंड देन दिस इज ए स्प्रे एंड प्रे मेथड. आप अखबार में ऐड छपा दीजिए, भगवान से प्रे कीजिए कि भगवान सही हाथों में पहुंच जाए, सही लोग इसको देख लें, सही एक्शन ले लें. क्योंकि अब गारंटेड कैसे है, वो तो सब जगह फेंक जाएगा न्यूज़पेपर. कोई गारंटी तो है नहीं कि आपने जो हीरो के हार का अपना ऐड निकाला है तो लोग देख करके आपको फोन करेंगे, लोग उस पर बिंडी काट देंगे, लोग उससे कचरा साफ करेंगे अपना, लोग उसको जो है डाइनिंग टेबल बिछा देंगे. कुछ भी हो सकता है अखबार के साथ में. ओके, सो वहां पे थोड़ा स्प्रे एंड प्रे है, लेकिन यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन मेरी ऑडियंस है. क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि हम सर आपका एडवर्टीजमेंट एग्जैक्टली वहीं पहुंचा देंगे. तो ऑडियंस हम बना सकते हैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस. कस्टम ऑडियंस वो होती है जो एग्जैक्ट आप ऑडियंस बताते हैं, और लुक अलाइक होती है कि आप फेसबुक को बोलते हैं, जब आपको देखिए ये ऐड चलाने से आएगा, आपको ऐड चलाएंगे कुछ टाइम तो आपको समझ आएगा मेरी ऑडियंस वर्क कर रही है, नहीं करी तो चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज करेंगे. यू हैव टू कीप डूइंग इट अंटिल एंड अनलेस यू फाइंड द राइट ऑडियंस. चाहे वो 10 बार चेंज करना पड़े, 50 बार चेंज करना पड़े. जब राइट ऑडियंस आपकी यहाँ पे मिल गए और राइट ऑडियंस का आपको जो है फीडबैक और सॉरी कन्वर्जन्स और इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई, द गेम एंटायर थिंग इज वर्किंग, लीड्स आनी शुरू हो गई हैं, देन यू कैन पुट ऑफर इन फ्रंट ऑफ फेसबुक की ये मेरा ऑडियंस इज फाइन एंड डियर फेसबुक, आपके पास तो दुनिया भर के सारे लोग हैं, तो ये मेरा कस्टमर है, इससे मिलता जुलता जितने लोग हैं वो भी मेरे कस्टमर होंगे, तो इसलिए कृपया आप मेरा एडवर्टीजमेंट उनको भी दिखाइए जो लुक अलाइक ऑडियंस है, जो लुक अलाइक है. अभी यहाँ पे हमने नहीं बनाया तो इसलिए नहीं आ रहा है, जब आप कस्टमर ऑडियंस बन जाएगी तो सब कुछ आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस. तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस हम बनाएंगे यहाँ पे. तो हम क्या करना चाहते हैं, देखिए लोकेशन.
अब दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर एंड बेटर, लेजर फोकस। और ये आप देखिएगा साथ साथ मीटर भी चेंज होगा। इंडिया में ऐड चला सकते हैं आप चाहें तो, आप कॉन्फ्रेंस के लिए बर्लिन में चला सकते हैं, यहाँ बैठ के आप यूएस में कर सकते हैं। सिटिंग हियर आई रन एडवर्टाइजमेंट्स टू टू सेवरल कंट्रीज, फॉर सेवरल कंट्रीज, सेवरल लोकेशंस। मेरे पास एक क्लाइंट है, बॉयलर्स बेचते हैं, ही इज लाइक सेलिंग इन कुवैत, सेलिंग इन ग्रीस, सेलिंग इन मालदीव्स, सेलिंग इन वियतनाम, पता नहीं कहाँ पे। तो उनके ऐड वहां निकालते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठ के आप कहीं पर भी ऐड चला सकते हैं। अभी धीरे धीरे मार्स भी ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे, जैसी वो कॉलोनी बनेगी उनकी। ओके, सो इंडिया, सो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पूरा पैन इंडिया करना है, दैट्स फाइन, लेकिन पैन इंडिया के हिसाब से आपका बजट 1200 रुपये होगा तो इतना बिखर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलतियां मत कीजिए, बी स्पेसिफिक। अब ये एक्सपीरियंस से आता है, ये नहीं बताते। सो स्पेसिफिक होने के लिए व्हाट विल डू इज वी गॉट टू ऐड अ लोकेशन। सो मे बी अभी आप कौन सी लोकेशन में आप लोग, जहाँ आपका कॉलेज कहाँ पे, द्वारका में है ना? Yes, sir. ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्च लोकेशंस में, मे बी आई से द्वारका। अब एक द्वारका गुजरात आ गया, एक सर्विस रोड भरतल रोड दिल्ली, न्यू द्वारका रोड दिल्ली, ये ठीक है, न्यू द्वारका रोड चूज कर लूं Yes, sir. ताकि आप भी कवर हो जाएं। ओके, अब हमने न्यू द्वारका अब क्या है, जैसे हमने न्यू द्वारका किया, अब देखिए यहाँ पे फर्क पड़ गया। वो कह रहा है कि 12 कितने हैं, ये 12 करोड़ है, 1,20,000 है, नहीं 12 लाख, 1,20,00,000 है, ठीक है। इतने लोगों तक आपका पहुंचेगा क्योंकि 16 किलोमीटर का रेडियस दे रहा है। मे बी इट इज टू ह्यूज फॉर यू, मे बी इट इज टू ह्यूज फॉर यू। देखिए अब यहाँ पे बात आती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कस्टमर पर्सोना। आपने शायद पढ़ा होगा इसको, कस्टमर पर्सोना के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो 1 मिनट में आपको बता दूं ताकि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि यस यू नो इट। देखिए कस्टमर पर्सोना होता है कि आपको सबसे पहले विदाउट इवन बिफोर यू टच फेसबुक, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका कस्टमर है कौन, आपका कस्टमर है कौन। तो हमें अगर पता है कि राचेल इज माई कस्टमर, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हैं और की डिसीजन मेकर हैं, ये 32 से 39 ईयर्स की हैं, ये इतना पैसा कमाती हैं, गुड़गांव में रहती हैं, इनके पास मास्टर्स डिग्री है, बच्चे हैं, नहीं मैरिड हैं, बच्चे नहीं हैं अभी तक, तो दैट मीन्स की लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, गोल्स एंड चैलेंजेस इनके हैं कि शी वांट्स टू सेव टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, हम उनके टाइम बचाने के लिए हमको ऐसे ऑफर कर सकते हैं कि आपके पोस्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपका कुछ हो जाएगा। तो देखिए आपने कस्टमर को पढ़ा, समझा और समझने के बाद में उसके लिए एक ऑफरिंग करी। सिमिलरली ये कस्टमर हो सकता है, इसका बैकग्राउंड और डीपर, जितना डीपर जाए उतना अच्छा है, जितना डीपर जाए उतना अच्छा है। गो टू द लेवल ऑफ किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आपको अगर सब, तो ये तो हम गर्लफ्रेंड ढूंढने का भी कस्टमर पर्सन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिसर्च होगी तो योर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस आर बेटर। पहुंच गए आपको उसके लिए जो पनीर का वो लेकर के क्या डिश लेके हम आपके लिए लाए, हमारा मोहब्बत कबूल कीजिए, वो कहेगी मैं तो पनीर खाती नहीं हूँ, तो आपका चांस खत्म हो जाएगा। सो प्लीज डू अ गुड रिसर्च। तो बैकग्राउंड ढूंढिए, आइडेंटिफाई ढूंढिए, गोल्स क्या है इनके, क्या इनके साथ में चैलेंजेस हैं। जितना अच्छा आपका कस्टमर पर्सोना होगा, जब तक ये नहीं होगा आपके पैसे वेस्ट हो रहे होंगे। और इसको एक्सरसाइज करने में मेहनत लगती है, अगर आप मेहनत को बाईपास करते हैं, यू कैन नेवर बी अ गुड मार्केटर, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। गेटिंग बैक टू अवर पेज, ओके, एड मैनेजर। तो देखिए अब अगर मुझे मालूम है कि यस माय कस्टमर लिव्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द्वारका, मुझे मेरे को अपने से 8 किलोमीटर कवर करना है या 5 किलोमीटर कवर करना है, मैं इसको कम कर दूंगा, 6 किलोमीटर मुझे कवर करना है। अब क्या हुआ, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे अब दिस इज लाइक ओनली 48 लाख पीपल, अभी वो करोड़ों में आ रहा था, ठीक है। चलिए अब क्या आपको पता चल गया, मेरा ये एरिया है, मेरे को जैसे बीएमआर में या सॉरी अपीजे में आपके कोई कैफे है माना है, उसके आसपास कोई कैफे खोलता है, तो वो ये चाहेगा कि मेरे कैफे में कोई 500 किलोमीटर दूर से आएगा नहीं, वो चाहता है उसी जगह कैफे खोलेगा, फिर कहेगा कि 2-3-4 किलोमीटर में यहाँ पे एरिया, इससे मेरे को लोग चाहिए। हाँ, उसके अलावा कहीं आगे, दैट इज बोनस, बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड टारगेट, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दैट इज व्हाट आई वांट, उसके अलावा जो आ जाए दैट्स फाइन। अब कैसे करना है हमको, तो आपका अगर आपको पता है कि मेरा कस्टमर 6 किलोमीटर में रहता है, उसकी एज क्या है, क्या 18 से 65 है उसकी एज जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूं, या वो 25 से लेकर, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको मेरे को लगता है आपकी एज आसपास होगी 22 to 25, दिस वुड बी द एज प्रोबेबली, और कम, इज दिस द राइट एज। अब क्या हुआ, 20 to 25 मैंने एज चूज कर ली है। जेंडर, नो न्यूज़पेपर कैन गारंटी कि ये एड सिर्फ फीमेल्स को ही जाएगा, ये गारंटी कर सकता है। तो इफ यू आर सेलिंग समथिंग विमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यू कैन डू दैट। इफ यू आर डूइंग इट फॉर एवरीवन, यू कैन चूज ऑल। इफ यू इट इज ओनली फॉर मेन, जैसे जेंटलमैन कंपनी आई है जो है वो है, या विमेन के लिए करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा।
suddenly it's very targeted now, only 3,10,000 people. अब देखिए यहाँ पे इफेक्टिव होगा या 1 करोड़ लोगों को आपके 1,200 रुपए का ऐड जा रहा था, वो इंप्रेशन में नहीं पहुंचेगा उनके पास में, क्योंकि यार ये तो वही बात होगी कि एक बर्फी का पीस लेके आप सारे स्कूल को बांटने चले, कितना आएगा, अगर आया भी तो इनसिग्निफिकेंट, राइट। ये आपने चूज करना है, एज आप चूज कर सकते हो, आपने लोकेशन चूज कर दी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग द टारगेटिंग, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटेल टारगेटिंग, कि मेरे कस्टमर को जो है क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्या बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर है, ठीक है, तो आईटी नहीं लिखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखेंगे हम। ये देखिए, तो आपका कस्टमर आईटी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो आपने आईटी यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे ही आपने आईटी किया तो यू आर टेलिंग कि फेसबुक रीच माय कस्टमर इज अ वुमन ऑफ 22 to 25 years of age लिविंग 6 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द्वारका, राइट, और इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं साथ साथ यहाँ भी कम हो गया, 26,000 हो गया। एंड शी कैरीज एन आईफोन, ठीक है, आईफोन जैसे करेंगे आईफोन 6s और उसका इंटरेस्ट है। अब जैसे ही किया 27,000 यहाँ पे आ गया, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद उनके क्या क्या देखिए, इसमें क्या करना है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, जो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो आईटी का हो, और वो जो है शॉपिंग कोई गैजेट बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो अब ये 2 लाख लोगों तक सिमट गया। तो ये बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर डेमोग्राफिक्स यू आर एडिंग। उसके बाद में कुछ सजेशंस अगर यहाँ पे देखिए, तो ये सजेशंस फेसबुक कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो इंटरेस्ट हम ये कर सकते हैं, तो समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट मेनी थिंग्स, तो आप जो है इससे कर सकते हैं। उसके बाद में यू वांट टू एक्सक्लूड पीपल, ये भी हो सकता है कि मेरे को ये लोग चाहिए और वो क्लैरिटी आपको है, और ये वाले लोग नहीं चाहिए, वो भी आपको क्लैरिटी है, तो वो एक्सक्लूड फीचर करते हैं। मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो समय नहीं बचेगा हमारे पास में, बट यस यू कैन डू दैट। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट, हो सकता है आपके आसपास कोई स्लम हो, तो एपीजे के 6 किलोमीटर में लोगों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारे स्लम्स में लोग उसको भी रिसीव कर रहे हैं, स्लम्स में भी उनके पास में फोन है, वो भी फेसबुक चला रहे हैं और वो भी मजे ले रहे हैं, वो भी एड पे क्लिक करे जा रहे हैं। तो क्या हो गया, दे आर नॉट योर कस्टमर्स, बट अल्टीमेटली दोज इंप्रेशंस आर गेटिंग वेस्टेड एंड यू आर बीइंग चार्ज्ड। तो आपको और लेजर फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे यार ये नांगलोई, जस्ट एक नाम ले रहा हूं, हो सकता है आपके आसपास ना हो, इसको हटा दिया जाए, ये स्लम XYZ मेरे आसपास है, इसको एक्सक्लूड कर लो उस एरिया को, आपने वो पूरा एरिया एक्सक्लूड कर दिया। ये कब काम आता है, जब आप ग्रेटर नोएडा वाली बेल्ट में आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं ना, वहां पे क्या है, एक हाउसिंग सोसाइटी है, बाद में गांव है, फिर एक हाउसिंग सोसाइटी है, फिर मैदान है, फिर हाउसिंग सोसाइटी, फिर फार्म हाउस है, फिर हाउसिंग सोसाइटी है, फिर कोई गाँव है, यू गो क्रेजी। I was running an advertisement for a hair salon in ATS, and that lady started getting phone calls from all over, and they were not interested, and they were just like कि मैडम कितने के बाल काटोगे, वो कह रहे हैं जी 300 रुपए के, हाँ तो 300 में 30 लोग काट दें हम, and all that stuff started happening. So she was like, she was very bugged up on, विकास जी ये क्या कर दिया, और ये है वो, oh my god, ये चीजें इंस्टेंसेस आपके साथ हमेशा होंगे। एडवर्टाइजर है तो आपको ब्रिक बैट्स भी मिलते हैं, और लोग बड़े गले भी लगाते हैं, बड़े खुश भी होते हैं जब आपका लड़ते भी हैं आपसे। तो दिस इज हाउ लव हेट रिलेशनशिप आपके क्लाइंट्स के साथ में रहेगी। सो देन आई रियली लुक्ड आउट टू दिस प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे स्लम्स हैं। सो आई यूज दिस एक्सक्लूड फीचर, और बाय यूजिंग दिस एक्सक्लूड फीचर आई वाज एबल टू एक्सक्लूड लॉट मेनी स्लम्स। तो 70% तक उनका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 30% यू कांट डू दैट, क्योंकि मशीन ही तो है यार, ये एकदम से बड़ा स्पेसिफिक नहीं होता है। तो बट यस, क्योंकि अब ATS है, आपने ATS पॉइंट कर लिया, उसके 10 मीटर पे ही कोई जो है स्लम है, यू कांट रियली डू दैट लेजर पॉइंटिंग, बट यस 70% द प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो CAC हमारी बेटर हो गई। रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेट, इसको क्लिक कर दीजिए। कभी कभी क्या मशीन है, उसको लगता है कि ये बेटर है, तो उससे भी पहुंचा सकते हैं। लैंग्वेजेस आप क्लियरली कर सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट निकालना चाहते हैं फॉर पीपल स्पीकिंग जर्मन नेशनल्स इन लिविंग इन दिल्ली, आप जर्मन कर दीजिए इसको, that will be even more beautiful, तो उन्हीं को जाएगा एग्जैक्टली। सो मे बी आई चूज इंग्लिश ऑल फॉर नाउ, हिंदी भी चूज कर सकते हैं, जो भी आप जो लैंग्वेज सर्च करनी है आप कर सकते हैं। देखें हर चीज के साथ में यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। एंड आई विल सेव दिस ऑडियंस नाउ, कि बस ये मेरे को ऑडियंस सिलेक्ट हो गया, ये इस पे काम करते रहना पड़ता है मैं धीरे धीरे। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। अगर आपका ऑडियंस सही नहीं है तो ऐड हमेशा गलत जगह पे जाएगा, गलत जगह जाएगा तो दे विल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होगी, क्योंकि दे आर नॉट द टारगेट कस्टमर, और इस वजह से आपके एडवर्टीजमेंट्स में जो है पैसे ज्यादा आते हैं और ऊटपटांग इंक्वायरीज आती हैं। तो दिस इज हाउ। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, अभी इसको यहीं पर करने दीजिए। मैनुअल प्लेसमेंट्स होता है व्हेन यू आर रियली अवेयर वेयर डू यू वांट टू प्लेस, अभी नहीं कीजिए, इसको ऑटोमेटिक पे रखिए। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, लीड्स की तरह हो रहा है, नो कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। फेसबुक, हमने फेसबुक को अथॉरिटी दी थी, तो फेसबुक अपने आप हमारी उसको हैंडल करेगा। नाउ वी पुट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद क्या होगा,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज द क्रिएटिव पार्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। अब आप सिंगल इमेज वाला चाहते हैं, ठीक है, सिंगल इमेज का चाहते हैं, हमने सिंगल में प्राइमरी टेक्स्ट आप जो भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाय यू आर इनवाइटेड टू अ कॉन्फ्रेंस इन एपीजे, अप्लाई नाउ एंड ऑल दैट, एप्लीकेशन ओपन ऑर्डर। अब देखिए जो मैंने यहाँ टाइप किया, यहाँ दिखा आपको राइट में चेंज हुआ, अब ये दिखा आपको ये वाला सेम कंटेंट हैज कम अप हियर। सो दिस इज इन ए नटशेल, वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस इज हाउ योर एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू लुक। तो वो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली इसने ले लिया, आप नहीं तो यहाँ पे सिंपल है, अपलोड करना है फोटो, फोटो आपकी आ जाएगी, आपने एक कॉन्टेंट लिखना शुरू कर दिया यहाँ पे। इज माई स्क्रीन विजिबल, एवरीथिंग इज फाइन? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद में हम ऐड ऑप्शंस करना चाहे मैं कर सकता हूं इसमें। आई कैन ऐड फ्रॉम प्राइमरी टेक्स्ट में भी, ठीक है, ये किया, ये भी कहीं पे अभी आपको दिखेगा इसमें चेंजेस, ये देखिए ये रिफ्रेश होता है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देन हेडलाइन, हेडलाइन यू कैन हैव आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डू नॉट मिस, ठीक है, ये आपने किया। अब ये कहाँ हेडलाइन आती है, देखिए ये देखिए यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है। और आप कॉल टू एक्शन क्या देना चाहते हैं, आप कॉल टू एक्शन में सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, मे बी इट वाज टू अप्लाई नाउ, आप अप्लाई कीजिए, पेपर इंटरनेशनल सबमिट कीजिए, जो भी करना है। और आप लिंक दिखाना चाहते हैं अपना कोई भी, तो आप डिस्प्ले लिंक में बता सकते हैं कि दिस इज टू बी apj.com व्हाटएवर। ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा लिंक भी आ गया, फॉर्म ऑन फेसबुक भी बन गया, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक उसके पीछे, ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है, अनटाइटल्ड फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना भी अपने आप में, जैसे हम इस पर क्लिक करता हूं मैं, जैसे क्रिएट फॉर्म अगर मैंने किया, तो क्रिएट फॉर्म में आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहें, इंट्रो में आप लिख सकते हैं वेलकम, ठीक है, आपने कोई बैकग्राउंड इमेज और साथ में लिख दिया, आपने हेडलाइन कर दी वेलकम टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कुछ भी, दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड व्हाटएवर, इसलिए आप यहाँ पे आइए, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिस्ट, आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा कॉपरेटिंग लिखना चाहते हैं। उसके बाद इमेज अपलोड कर दिया, यहाँ पे एक इमेज अपलोडेड है ऑलरेडी। ये करने के बाद में यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में क्या होता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन यू वांट टू बी फिल्ड, ईमेल यहाँ पे लिखा है, फुल नेम है, और आप चाहें तो इसमें मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें क्या है, देखिए ये इसमें मजे की बात है, ये ऑटो कैप्चर हो जाता है जैसे ही वो अप्लाई नाउ करेगा। तो क्योंकि उसने जब फेसबुक अकाउंट जिस दिन बनाया था, उस दिन उसके पास में ईमेल नंबर भी उन्होंने डाला है, अपना मोबाइल नंबर भी डाला है, और कोई और जो भी चीज है वो सब डाला है यहाँ पे। तो आप ये तीन चीज तो आराम से पूछ सकते हैं। ओके, योर ईमेल यू हैव टू एंटर, उसके बाद में मल्टीपल चॉइस नहीं, सॉरी। अब जैसे कोई फॉर्म भर रहा है, कुछ है कि अब जैसे कॉन्फ्रेंस का फॉर्म बड़ा लंबा तगड़ा होगा, उसमें आपने पहले कुछ भरा नहीं भरा, क्या सब्जेक्ट है, क्या सब कैटेगरी है, ऑल दोस थिंग्स, सो यू कैन क्रिएट अ फॉर्म ओवर हियर, दिस इज जस्ट क्रिएटिंग अ फॉर्म। एंड प्रीफिल क्वेश्चंस, यस यू कैन प्रीफिल क्वेश्चंस, हम इसको भी फिलहाल डिलीट करते हैं। हमने ऐड क्वेश्चन में क्या करना था, शॉर्ट आंसर टाइप में जैसे क्वेश्चन हो गया ये वाला, हाँ यस, कि योर मोबाइल नंबर, ठीक है, इस तरह का आपने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आपने ऐड क्वेश्चन में कर दिया, स्पेशल शॉर्ट आंसर वाले में योर ईमेल, ठीक है। इसी तरह से इसमें आपने कर दिया शॉर्ट आंसर में योर और क्या हो सकता है, एड्रेस या व्हाटएवर, नॉर्मली क्या होगा, मोबाइल, ईमेल और नेम, सॉरी नेम ऊपर आना चाहिए था, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है। तो ये इंफॉर्मेशन ऑटो कैप्चर हो जाएगी आपकी। and choose the type of information what you need, ये आपने कॉन्टैक्ट ईमेल है, फुल नेम है, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे, and then if you want some description, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि please fill up and we will get back to you, yeah thank you for your information, just to make the form more courteous and ये भी छोटी छोटी चीजें भी ब्रांडिंग का भी काम करती हैं। and then you can add a category also, useful user information, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस आप जेंडर वगैरह का करना चाहते हैं, डिपेंड्स। आइडियली अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं और जैसे कॉलेज एडमिशन है तो बेचारे को 50 क्वेश्चन बोलोगे तो भी भरना पड़ेगा, 100 है तो भी भरने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई रेजर खरीदने के लिए आपसे 70 क्वेश्चन पूछ रहा है तो यूल नेवर बाय इट। तो जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिंपल दो चीज पूछिए, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंड नेम, बस दैट इज इट, वो प्रीफिल्ड हो जाएगा आपके लिए। ये फॉर्म आपका बन गया एंड यू कैन नाउ पब्लिश इट। अब ये कुछ एरर्स हैं, अच्छा प्लीज प्रोवाइड ए वैलिड बिजनेस पॉलिसी, अच्छा हाँ इसमें पॉलिसी जरूर मांगता है, और
तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ ईमेल पॉलिसी एंड यू नीड टू हैव अ वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी वेबसाइट डाल रहा हूँ .com। आप फेसबुक पेज का यूआरएल भी डाल के चला सकते हैं, अगर वेबसाइट नहीं है तो वो भी चला सकते हैं। ये आपका लिंक टेस्ट क्या हो गया आपका, आप कह देंगे PLSC डिजिटल, और उसमें डिस्क्लेमर का डालना चाहें ये हो गया। इसके अलावा कुछ और एक होगा आपका, यस ठीक है, जहाँ जहाँ लिंक है आप लिंक को फिल कर दीजिए। तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, या एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, तो यू विल बी एबल टू पब्लिश। ये फॉर्म हैज बीन एडेड, एवरीथिंग हैज बीन डन, ये आपका पब्लिश हो गया। देखिए इस तरह से होगा, यू आर अबाउट टू टेक अ डिसीजन, योर चाइल्ड विल बी प्राउड ऑफ यू। मैंने कहीं पुराना बना होगा, एडमिशंस टू किड्जानिया स्टार्ट ऑन 10 days, प्लीज डू नॉट मिस टू सेंड योर एप्लीकेशन। ये सब कहाँ आएगा, जब आप ऐड देखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज आएगी, ये इन्फॉर्मेशन आएगी, और साथ में फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये फॉर्म आएगा, काइंडली प्रोवाइड योर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल हो गया, ये सब कुछ हो गया। और जैसे ही उसने क्लिक करके नेक्स्ट करेगा, सबमिट करेगा, जैसे ही आपके पास में 1 सेकंड में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी एक्सेल फाइल में। इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे जो डैशबोर्ड है उसमें दिखेगा, आपको जा सकते हैं आप एडवर्टीजमेंट में। लीड्स आपकी जितनी वहां पे कलेक्ट हो जाएंगी, लीड्स कलेक्ट हो गई, नाउ यू आर द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप कितना अच्छा उस लीड को हैंडल करते हैं वो इस पे मैटर करेगा, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट गिवन द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम मुझे चिंता ये और थी कि मैं 1 घंटे में ये भी बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा। तो सिंगल इमेज आप कैराउजल, जैसे कई बार ये होता है आपका कोई प्रोडक्ट है, हाई डिजाइन के बैग्स बेच रहे हैं आप, तो बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4, 5, 6, 7, तो वो चलता रहता है, पूरी की पूरी उनको रेंज दिख जाती है। तो दैट इज व्हेन यू वांट टू शो दैट रेंज, यू चूज दैट कैराउजल। इफ यू हैव रेंज, डू नॉट कंफ्यूज पीपल, इफ इट इज अ कॉन्फ्रेंस देन गिव दैट। अब ये मार्केटिंग की चीजें हैं कि आप कंफ्यूज मत कीजिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दीजिए, कहाँ स्पेसिफिक देनी है, कहाँ आपको वैरायटी दिखानी है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज यू वांट टू डू। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक लीड एड जनरेट करते हैं, और लीड्स हमारे पास में कम पैसे में लीड आ जाती हैं, और ये लीड एक्सेल फाइल की तरह आपके पास में आती है। देन इसके साथ आप एक CRM भी अटैच कर सकते हैं फेसबुक में, और CRM आपके फोन में अटैच होगा, ताकि यहाँ जब भी कोई इंक्वायरी आएगी इमीडिएटली आपको वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, सो दैट यू आर एबल टू परस्यू द एडवर्टाइजमेंट इमीडिएटली। बिकॉज द लॉन्गर द टाइम, देखिए इसमें फेसबुक में ये बड़ा डेंजर है कि लोग स्क्रॉल करते करते कोई इंक्वायरी किया, उसके 2 मिनट में भूल भी जाते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया था, और जब आप उनको फोन करते हैं 3 घंटे बाद वो मुकर जाते हैं, मैंने कोई इंक्वायरी भरी नहीं, और वो जेन्युइन है, उनको याद ही नहीं है। तो इसलिए जैसे इंक्वायरी आती है, द बेस्ट थिंग इज कॉल देम इमीडिएटली, और वो तब होगा जब आपका इंटीग्रेशन CRM से होगा। उसके लिए थोड़ा से पैसे आपको अलग से खर्चने पड़ेंगे, CRM लेना पड़ेगा, जोहो ले लीजिए, हेलो लीड्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप स्पॉट ले लीजिए। वो इंटीग्रेशन होने के बाद में, और देन ऑटोमेटिकली अगर वो अच्छा CRM है तो इट विल पुट दोज योर थिंग्स इनटू CRM, और फिर उसके बाद में आप उनको ऑटोमेटिक मेल्स और व्हाटएवर द CRM विल टेक ओवर, वो आप कर सकते हैं। आप इक्वल सीक्वेंसेस बना सकते हैं। Sorry to disturb you, Yeah, sir. so that is what it is. They have exam at 3 p.m. So Fine, that's to that's our it. students. ठीक है, so Okay. thank you so much. And thank you very much, Vikas sir. And Vikas sir will be with us on Friday as well. And on Friday he will take another topic. And that was an interesting session on Facebook. I personally attended the whole session. Okay. Because I want to make a campaign. So I was seeing everything. I have made a page already while taking your session. So now we will be connecting again on this Friday. And meanwhile, all of you, I'll send you the attendance link on your WhatsApp group. You can fill your attendance. Thank And you, if sir. you want Thank you, more everyone. information on digital marketing, if you really want to get started, so this is my website, plrcdigital.com. You can go over here, and you can simply put in your email ID. And once you put in your email ID, the first session is going to play for you, जिसमें आपको पूरा fundamental पूरी तरह समझ में आएगा digital marketing क्या है, and then you can choose to go ahead or whatever. So this is where you can get the first session for free. It's a 1.5 hour session, तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा. So that is what you can do. You can go to PLRC Digital. This is the link. If you want to note it down, you can note it down. And this is my Digi Ninja course, which I run. And this is a very good course. I've made it during this pandemic itself. Sir, can you give it on the chat bar? Chat mein. Yeah, sir will PLRC give it to Digital. me. Sir will give it to me, and I'll give it. Okay, fine. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है. Okay, then thank you. Bye bye, all of you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Anuj, sir. आपके Thank you so ग्रुप much. में Bye-bye. अटेंडेंस का लिंक, थैंक यू सर, आपके ग्रुप में अटेंडेंस का लिंक डाल दूंगा. 3:30 तक चलेगा वो, आप लोग अपनी अटेंडेंस भर. Fine, sir. I'm ending the meeting, right? I'm the host. तो Okay, sir. तो Thank आप you. अपने Yes, end कर दूं? yes. You can. Yes, sir. Okay, ठीक है.